A very good evening to all of you. So, today we are going to discuss about the life cycle and pathogenicity of Wucheria bancrofti. Okay, so Wucheria bancrofti is a filarial nematode causing a very tragic, horrifying, and debilitating disease known as filariasis. So, this disease has been known for antiquity and was the first discovery of insect transmission of a human disease. So, it was first discovered by Demetri Quay in the hydrocele fluid of man in 1863. Later, Vouturier 1866 reported them in the Kylus urine, and Lewis 1872 found them in the human blood. Bancroft, however, discovered the adult females in 1876. That's why it is all known as Vaucheria bancrofti. Vaucheria from Vauchier and Bancrofti from Bancroft. So the name was given by the discoverer. So the filarial worm Vaucheria bancrofti of a man is very dangerous nematode parasite causing Vaucheriasis or filariasis in human beings. Another related genera is that is Brugia malai, the common Malayan filarial worm. तो वो भी जो फिलेरिसिस है वो कॉज करता है, दैट इज द ब्रूजिया मलेरिया. तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इट्स बिलोंग्स टू फाइलम एस्केलिमेंथिस, class Nematoda, order Philaroideae, and genus Vaucheria, and species Bancrofti. Okay, so Vaucheria is a digenetic nematode which lives in the lymphatic vessels and lymph nodes of the man, and its intermediate host is Culex mosquito. So in general, infection with any of the filarial nematode may be called as filariasis, but traditionally the term filariasis referred to lymphatic filariasis caused by Vaucheria or Brugia species. So filarioids are tissue-dwelling parasites in all classes of vertebrate except fish. So this is the habit and habitat of Vaucheria bancrofti. So then I have already told you that the name, the genus Vaucheria was named after Vaucherer, a Brazilian physician who reported the presence of larvae in Chylus urine in 1866. The adult female was described by Bancroft. That's why in 1876, that's why the name was given. That is a Vaucheria bancrofti. So Vaucheria bancrofti is distributed widely in tropics and subtropics of Asia, India, Bangladesh, Myanmar, China, Africa, and South America. So these are the distribution. Okay. So if we look upon the morphology of the adult and the larvae, so the adult worms are whitish, translucent thread-like worms with smooth cuticle and tapering ends. The head is slightly swollen and bears two circles of well-defined papillae. The mouth is small and like buccal capsule. The female worm is larger, that is 80 to 100 millimeter long and 0.24 to 0.3 millimeter wide than the male. The male is 40 millimeter long and 0.1 millimeter in width. So you can see in this diagram clearly the male and female. Female is always larger in size than male, and the male has the two pointed ends. Yeah, or we can say that the male has a curved spicules of unequal length on the end, at one end, while the female is abruptly pointed. The male and female remain coiled together and are separated with difficulty. The female is ovoviviparous, or we can say simply it lays egg which contain well-developed embryos. The embryos are known as microfilary. Okay, so you can see the vulva is near the level of middle of the esophagus. Males and females remain coiled together unusually in the abdominal and inguinal lymphatics and in the testicular tissue of human. The adult worms live for many years, probably 10 to 15 years or more.
So this is all about the adult. If we look upon the juvenile, so female Vaucheria are, I've already told you, ovoviviparous. They lay eggs, but in the eggs the embryo are already developed. The juvenile or embryos are released encased in its elongated eggshell, which persists as a sheet. These embryo are referred to as microfilary. So this is the microfilary, which is taken by the क्यूलेक्स मॉस्किटो. तो ये ह्यूमन के बॉडी में डेवलपमेंट होता है, ठीक है. जो मेल एडल्ट या मेल या फीमेल है वो ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम में उनका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है. देन उसके बाद वो एग ले करता है प्रोटोग्लोटिड से, ठीक है. देन जब वो एग ले करेंगे तो वो एग एग्स होंगे, उसके अंदर लार्वा या एम्ब्रियो डेवलप हो गया होता है, ठीक है. तो एक इट्स ए कवरिंग, तो वो कवरिंग है एक्चुअल में, बट अंदर उसका लार्वा डेवलप हो गया है, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, उस एम्ब्रियो को हम बोलते हैं माइक्रोफिलेरी. और यही माइक्रोफिलेरी इज एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसफर्ड बाय द Culex mosquito during a blood meal. So the sheet is delicate and close fitting but can be detected where it projects at the anterior and posterior ends of the microfilaria. The microfilaria can easily move in that particular encapsulation, or we can say inside the shell. Okay, so the embryos have colorless translucent body with a blunt head and pointed tail, measuring about 250 to 300 micrometer in length, 6 to 10 micrometer in thickness. It is actively motile and can move forward and backward within the sheet. तो उसी शीट के अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं और उसी शीट में वो आगे और पीछे वो मूव कर सकते हैं, ठीक है. तो अगर हम क्यूलेक्स की बात करेंगे, क्यूलेक्स में जब वो इस माइक्रोफिलरी को ले लेता है ड्यूरिंग ए ब्लड मील, तो अब वहाँ पे उनका बाइनरी फिशन से डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ सिंगल जो माइक्रोफिलरी है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है. वो अलग अलग लार्वल स्टेज में डेवलप होगा. देन फाइनली जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो ट्रांसफ़र होगा फिर से किस में, ह्यूमंस में, ठीक है. तो जब ह्यूमंस में ये जो एम्ब्रियोस है, या जो ये हम ऐसा बोलेंगे दैट इज़ अ माइक्रोफिलरी, जब वो रिलीज़ किया जाता है बाय द एडल्ट फीमेल, तो अगर इनको क्यूलेक्स मॉस्किटो ने अपने बॉडी में ब्लड मील के टाइम पे लिया नहीं, तो ये माइक्रोफिलरी उस ह्यूमन के अंदर मर जाते हैं, ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफर ऑफ द माइक्रोफिलरी इन द क्यूलेक्स मॉस्किटो. सो अगर हम उस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो हम अगर उसको लेशमैन स्टेन्स के साथ स्टेनिंग करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, तो हमें स्ट्रक्चरल जो डिटेल्स है वो हम वहाँ से पता लगा सकते हैं. जैसे कि सेंट्रल एक्सिस ऑफ माइक्रोफिलरी, ए कॉलम ऑफ ग्रेन्यूल्स कैन बी सीन विच आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स और न्यूक्लियाई. एट द हेड एंड इज ए क्लियर स्पेस डिवाइड ऑफ ग्रेन्यूल्स कॉल्ड द स्फेलिक स्पेस. इन माइक्रोफिलरी बाइनक्रॉफ्टी दिस स्पेस इज एज लॉन्ग एज इट इज़ ब्रॉड. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे दो पोर रहते हैं, एक एंटीरियर वी स्पॉट, तो दिस इज द एक्सक्रीटरी पोर जिसको कहा जाता है, ठीक है. एक होता है पोस्टीरियर वी स्पॉट, दैट इज जिसको एनल पोर भी कहा जाता है, ठीक है. और यहाँ पे आप सोमेटिक सेल्स देख सकते हैं. सो दीज आर सोमेटिक सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, दीज आर द सोमेटिक सेल्स, ओके. और जो एंटीरियर साइड है वहाँ पे एक आपको कैविटी दिखेगी, दैट इज द नर्व रिंग, ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोफिलरी ऑफ द वॉचिरिया बेनक्रॉफ्टी. तो ये जो वॉचिरिया बेनक्रॉफ्टी है, इसका ये लार्वा है वो इट इज़ प्रेजेंट इन इनसाइड द एग शेल और इनकैप्सुलेटेड शेल. ओके, सो द माइक्रोफिलरी सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम. तो ये जो माइक्रोफिलरी है वो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करता है, वो आगे भी फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है और बैकवर्ड भी मूव कर सकता है. सो इन मोस्ट एशियन कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया दे शो ए नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी इन पेरिफेरल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन. तो मेनली ये हमारे ब्लड में कब आते हैं, जब रात हो जाती है, तब ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं, ताकि जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है वो हमको बाइट कर सके और उनका जो लार्वा है वो ट्रांसफ़र हो सके किस में,
उस पर्टिकुलर क्यूलेक्स मॉस्किटो में। सो इट इज सीन इन लार्ज नंबर इन पेरिफेरल ब्लड ओनली एट नाइट। तो सिर्फ रात को ही जो पेरिफेरल ब्लड है, जैसे कि हमारा जो स्किन है वहाँ पे वो आ जाते हैं, ताकि दे आर सक्ड बाय द क्यूलेक्स मॉस्किटो। ओके, बिटवीन 10 p.m. एंड 4 a.m. उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस को रिलेट्स विद द नाइट बाइटिंग हैबिट ऑफ द वेक्टर दैट इज द क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्योंकि जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है वो रात को ही बाइट करता है, दैट्स वाई दे ओनली कम्स ऑन इन द पेरिफेरल ब्लड ड्यूरिंग द नाइट। तो ये एक रीज़न है, ये इनका एडाप्टेशन है। So, periodicity may also be related to the sleeping habits of the host. It has been reported that if sleeping habits of the host are reversed over a period, the microfilary change their periodicity from night to day. तो ये उनके स्लीपिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है। अगर जो होस्ट है उसने अपना जो स्लीपिंग हैबिट है वो चेंज कर दिया, अगर वो दिन दिन में सोने लगा और रात में जागने लगा, तो जो ये माइक्रोफिलरी है वो भी दिन में उसके पेरिफेरल ब्लड सिस्टम में एंटर होगा और रात में वो वापस लिम्फेटिक सिस्टम्स में चला जाएगा। सो अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, so Vaucheria bancrofti is a digenetic parasite. So it completes its life cycle in two hosts. That is, the primary host is the human, and the secondary host is the uh, Culex mosquito. Okay, that is the Culex fatigans. So Vaucheria bancrofti requires two hosts for completion of its life cycle. So man is the definitive or primary host, and no animal or host or reservoir is known for Vaucheria bancrofti. The intermediate host is the female mosquito or the genus Culex. The major vector in India and most other parts of Asia is Culex fatigans. So this is the mosquito which is responsible for the transfer of the Vaucheria bancrofti from human. So if we look its life cycle in the mosquito, so when a vector or a mosquito bites a human during a blood meal, the microfilary is taken uh, within the blood meal and reach the stomach of the mosquito। क्योंकि जो ह्यूमन है उसमें जो एडल्ट फीमेल है वो ये एग ले करता है, इनसाइड द एग दैट इज प्रेजेंट द माइक्रोफिलरी। ठीक है, तो जब क्यूलेक्स है जब वो ब्लड मील लेने आएगा ह्यूमन के पास, तो उस ब्लड मील के टाइम पे जो माइक्रोफिलरी है दे विल ट्रांसफर फ्रॉम द ह्यूमन टू द मॉस्किटो, और मॉस्किटो के अंदर वो कहाँ पे चला जाता है, स्टोमक में चला जाता है। देन विद इन 2 to 6 आवर दे कास्ट ऑफ देयर शीट। ठीक है, तो 2 से 6 घंटे के बाद अब वो अभी एग के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो उस एग से बाहर निकल के आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स शीटिंग बोलते हैं या एक्सकैप्सुलेशन बोलते हैं। सो penetrating the stomach wall and within 4 to 17 hours migrate to the thoracic muscles where they undergo further development. Then वो स्टोमक वॉल को, जो मॉस्किटो है उसके स्टोमक वॉल को पेनिट्रेट करते हैं। देन विद इन 4 to 17 आवर्स वो जो थोरेसिक मसल्स है वहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं, और उस थोरेसिक मसल्स में क्या होता है, उनका फर्दर डेवलपमेंट होता है। देन ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 days द मेटामॉर्फोसिस इनटू द फर्स्ट लार्वल स्टेज विच इज सॉसेज शेप्ड फॉर्म with a spiky tail measuring 125 to 250 into 10 raised to power 10 to 15 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो देन कुछ दो दिन के बाद उनका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। उन वो पहले लार्वल स्टेज में उनका कन्वर्शन होता है, उनका मेटामॉर्फोसिस होता है, जो सोसेज शेप है जिसका, और स्पाइकी टेल रहते हैं, और उनका जो साइज़ कितना रहता है 125 to 250 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 15 माइक्रोमीटर। तो कुछ ही हफ्तों में उनका मॉल्टिंग स्टार्ट हो जाता है, और वो अलग अलग जो लार्वल स्टेजेस है उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि दे इंक्रीज इन साइज एंड बिकम द सेकेंड स्टेज लार्वा मेजरिंग। अब उनका साइज ही बढ़ जाता है, तो जैसे जैसे मॉल्टिंग होगा वो उनका जो लार्वल फॉर्म से वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में वो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो इन अनदर वीक इट डेवलप्स internal structures and becomes the elongated third stage filariform larva measuring 1500 to 2000 into 115 to 25 micrometer. It is actively motile and infective. It enters the proboscis sheet of the mosquito awaiting opportunity for infecting human, the definitive host. तो कुछ ही हफ्तों के बाद वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो इलोंगेट हो जाते हैं वो। ठीक है, और उनका जो थर्ड स्टेज है दैट इज़ द फिलेरियल फॉर्म, उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, देन ये जो स्टेज है वो क्या है, बहुत ही
मोटाइल है, बहुत मूवमेंट दिखाते हैं और बहुत ही खतर इन्फेक्टिव है। अब ये जो स्टेज है, अब वो थोरेसिक मसल से वो अब एंटर होंगे कहाँ पे, प्रोपोसिस शीट में, जहाँ से वो इजीली ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो तब तक वो वहाँ पे रहते हैं, जब तक वो जो मॉस्किटो है वो दूसरे ह्यूमन को बाइट ना कर दे, तब तक वो वहीं पे रहते हैं। ठीक है, देन आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यू कैन सी हियर। तो ह्यूमंस बाइट करने के बाद यहाँ पे देखो इन्फेक्टेड मॉस्किलो। तो मेनली जो मॉस्किटो जब बाइट करता है तो वहाँ से जो माइक्रोफिलेरियल फॉर्म से वो उसमें ट्रांसफ़र होता है। तो इसके स्टोमक में पहले वो इन उस कैप्सूल से बाहर आ जाते हैं, क्यूलेक्स के कैप्सूल से। देन उसके बाद वो थोरेसिक मसल्स में एंटर होंगे। थोरेसिक मसल्स में एंटर होने के बाद पहले वो फर्स्ट इंस्टेल लार्वा में कन्वर्ट होगा। देन कुछ दिनों के बाद वो सेकंड इंस्टेल लार्वा में कन्वर्ट होगा। देन फाइनली जो इन्फेक्टिव स्टेज है, दैट इज़ द थर्ड इंस्टेल लार्वा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलीरियम फॉर्म। ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट होंगे। देन जब वो फिलेरियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो फिलेरियल फॉर्म में मैंने आपको कहा दैट इज़ वेरी मोटाइल एंड इन्फेक्टिव स्टेज। देन इट विल एंटर्स इनटू द प्रोबोसिस ऑफ द क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब वो प्रोबोसिस में वो रहेंगे, प्रोबोसिस जो शीट है वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। जब वो दूसरे ह्यूमन को बाइट करेंगे तो उस टाइम पे उस प्रोबोसिस शीट के थ्रू वो फिर से ह्यूमन में एंटर होंगे। ठीक है, सो यू कैन सी हियर द लाइफ साइकिल ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉस्किटो। सो जो उसमें है क्यूलेक्स मॉस्किटो में इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा। वो माइक्रोफिलेरियल फॉर्म में मॉस्किटो में एंटर होते हैं और वही एक माइक्रोफिलेरियल फॉर्म फिर इन्फेक्टिव लार्वा में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर बुलेट के जब बुलेट मील के टाइम पे अगर उसने 5 माइक्रोफिलेरियल लार्वा सक किए होंगे, तो उस टाइम पे वही 5 फर्स्ट इंस्टाल लार्वा, सेकंड इंस्टाल लार्वा और थर्ड इंस्टाल लार्वा में कन्वर्ट होंगे और 5 ही इन्फेक्टिव स्टेज जो लार्वल है उसमें कन्वर्ट होंगे। देन वो ह्यूमन को जब बाइट करेगा तब वही जो लार्वा है वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे कोई बाइनरी फिशन नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर पैरासाइट का। ठीक है, एक उसने लिया तो एक का ही डेवलपमेंट होगा, अगर 2 लिया तो 2 वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सो देयर इज़ नो मल्टीप्लिकेशन। So, the time taken from the entry of the microfilaria into the mosquito till the development of the infected third stage larva located in its proboscis sheath constitute the extrinsic incubation period। तो ये जो पीरियड है जब मॉस्किटो ने बाइट किया और उस माइक्रोफिलेरियल लार्वा को अपने अंदर लिया, और कब तक, जब तक वो जो इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज जो फॉर्म होता है दैट इज़ द थर्ड इंस्टेल लार्वा। ये जो पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, उस पीरियड को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, सो इट्स ड्यूरेशन वेरीज विद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एज वेल एज वेक्टर स्पीशीज। तो वो जो ये पीरियड है वो डिफ्रेंशिएट करता है अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो मेनली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है। ठीक है, सो अंडर ऑप्टिमल कंडीशन इट्स ड्यूरेशन इज 10 to 20 डेज। तो 10 to 20 डेज में जो माइक्रोफिलेरियल लार्वा है वो उसके थर्ड इंस्टेल लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो आप ह्यूमंस में इनका लाइफ साइकिल कैसे है। सो व्हेन ए मॉस्किटो विद इन्फेक्टिव लार्वा, जब एक मॉस्किटो होगा वो बाइट करेगा ह्यूमन को, तो उसके प्रोबोसिस में जो इन्फेक्टिव लार्वा प्रेजेंट है, इट गेट डिपॉजिटेड इन द ह्यूमन। ठीक है, यूजुअली इन पेयर्स ऑन द स्किन नियर द पंक्चर साइट। जहाँ पे बाइट किया वहीं पे जो लार्वास है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, द लार्वा देन एंटर्स थ्रू द पंक्चर वाउंड और पेनिट्रेट द स्किन बाय देमसेल्व्स। तो वो उस पंक्चर वाउंड से या ब्लड में एंटर होंगे, या तो वो खुद ब खुद स्किन को पेनिट्रेट करके वो उस ह्यूमन में चला जाएगा। सो एक्चुअली जो डोज है वो अननोन है। ठीक है, कि कितने अगर उसने बाइट की, क्यूलेक्स ने बाइट किया, तो पहले ही बाइट में वो जो लार्वा है वो उसमें ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ जो लार्वा है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते स्किन को, और बहुत सारे जो लार्वा है उनको डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय बाय द होस्ट डिफेंस सिस्टम। ठीक है, सो it is found that a very large number of infected mosquito bites are required to ensure transmission to men। तो बहुत सारे जो मॉस्किटो बाइट्स हैं वो चाहिए ताकि जो फिलेरियल लार्वा है दैट इज़ द थर्ड इंस्टेल लार्वा वो ह्यूमन में पहुंच सके। ठीक है, तो नॉर्मली इन्होंने यहाँ पे एक वो दिया है दैट इज़ अ 15
15,000 इन्फेक्टिव बाइट्स पर पर्सन। तो अगर 15,000 इन्फेक्टिव बाइट्स पर पर्सन वो क्यूलेक्स बाइट करेगा, तभी जो लार्वा है वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। सो उसके बाद अगर ट्रांसफ़र हो गया, ह्यूमन में एंटर हो गया, तो आफ्टर पेनिट्रेटिंग द स्किन द थर्ड लार्वा एंटर द लिम्फेटिक वेसल्स। तो वो कहाँ पे एंटर होंगे? लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर होंगे। एंड मेनली दे आर कैरीड टू द एब्डोमिनल और इंगुअल लिम्फ नोड्स। तो जो एब्डोमिनल या इंगुअल लिम्फ नोड्स है वहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जहाँ पे वो एडल्ट फॉर्म में डेवलप होते हैं। सो देयर इज़ नो मल्टीप्लिकेशन एट दिस स्टेज। तो यहाँ पे भी इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। एंड ओनली वन एडल्ट डेवलप्स फ्रॉम वन लार्वा, मेल और फीमेल। तो एक लार्वे से एक एडल्ट, चाहे अगर वो लार्वा फीमेल होगा तो वो फीमेल में डेवलप होगा, अगर वो मेल होगा तो वो मेल में डेवलप होगा। सो ये जो लार्वा है, जो ये मेल और फीमेल है, तो ये लार्वा है, इट बिकम सेक्सुअली मैच्योर आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद ये जो लार्वा है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, ठीक है। एंड मैट, तो फिर वहाँ पे उनका मेटिंग होगा 6 मंथ के बाद, जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे। सो द ग्रेविड फीमेल वॉर्म रिलीज लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलेरी, ठीक है। तो अगर तो वहाँ पे जो फीमेल है दैट इज मेच्योर, तो इट रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स आफ्टर गेटिंग मेच्योर, ठीक है। मेटिंग के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इट रिलीजेज अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स, ऑलमोस्ट 50,000 पर डे। तो 50,000 पर डे क्या होगा? एग्स आर रिलीज्ड इनटू द in the circulation, या in the host, in the primary host, that is the human. So they pass through the thoracic duct and pulmonary capillaries to the peripheral circulation. तो वो जो लार्वीज हैं या जो माइक्रोफिलेरियल है या जो एग हम बोलेंगे, तो वो थोरेसिक डक्ट्स के थ्रू पास होंगे, देन पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू पास होके फाइनली वो कहाँ पहुँचेंगे? पेरिफेरल सर्कुलेशन में, जहाँ से वो फिर से एक दूसरे क्यूलेक्स मॉस्किटो के पास वो ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। सो इन द पेरिफेरल ब्लड द माइक्रोफिलेरी डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर डेवलपमेंट। तो पेरिफेरल ब्लड में वो किसी उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। सो दे आर नॉट टेकन अप बाय फीमेल वेक्टर मॉस्किटो, दे डाई। अगर उनको किसी मॉस्किटो ने लिया नहीं तो वो मर जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ मॉस्किटो शुड बाइट दैट पर्टिकुलर पर्सन विच इज़ इन्फेक्टेड, और वो जो लार्वीज है वो उस मॉस्किटो में जाके अपना जो लाइफ साइकिल है वो फिर से कंप्लीट कर सके। अगर किसी फीमेल मॉस्किटो ने उसको बाइट नहीं किया उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन को, तो वो जो एग्स हैं वो वहाँ पे मर जाएंगे। सो देयर लाइफ स्पेन इज बिलीव टू बी अबाउट 2 to 3 months। तो 2 to 3 मंथ जो एग्स है वो सर्वाइव करेंगे, उसके बाद वो मर जाते हैं। सो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ माइक्रोफिलेरी डेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 15 पर ड्रॉप ऑफ ब्लड इज नेसेसरी फॉर infecting mosquito. Densities of 20,000 microfilary or more per ml of blood may be seen in some carriers, ठीक है। तो अगर हम माइक्रोफिलेरी की डेंसिटी देखेंगे तो एटलीस्ट 15 पर ड्रॉप ऑफ ब्लड वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मॉस्किटो बाइट करे तो इतना माइक्रोफिलेरी उस ब्लड में होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल। तो हमने देखा लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द pathogenicity of Wucheria bancrofti. So filariasis is usually transmitted to man through mosquito biting. The disease can be accidentally transmitted through blood transfusion when the donor is infected with microfilary. तो नॉर्मली जो ये ट्रांसफ्यूजन होता है, जो ट्रांसफ़र होता है इस माइक्रोफिलेरी का या जो फिलेरिसिस का, तो वो मॉस्किटो बाइटिंग से होता है। बट समटाइम्स अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे, अगर किसी इन्फेक्टिव पर्सन का ब्लड डोनेट करेंगे किसी नॉर्मल पर्सन को या हेल्दी पर्सन को, तो उस हेल्दी पर्सन को भी ये फिलारिसिस जो बीमारी है वो हो सकती है। तो हम इंक्यूबेशन टाइम देखेंगे। द पीरियड फ्रॉम द एंट्री ऑफ द इन्फेक्टेड थर्ड स्टेज लार्वा इनटू द ह्यूमन होस्ट टिल द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ माइक्रोफिलेरी इन सर्कुलेशन इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल इंक्यूबेशन पीरियड और द प्री पेटेंट पीरियड। दिस इज यूजुअली अबाउट 8 to 12 months। तो जब एक मॉस्किटो बाइट करता है एक ह्यूमन को, नॉर्मल ह्यूमन को, और जो फिलेरियल लार्वा है, थर्ड इंस्टॉल लार्वा, उसको थर्ड स्टेज लार्वा को इंजेक्ट करता है ह्यूमन में, वहाँ से लेके वो सेक्सुअली मैच्योर होकर जो एग्स ले करता है, ठीक है, वहाँ तक, उस पीरियड तक इज कॉल्ड बायोलॉजिकल इंक्यूबेशन पीरियड, या जिसको हम क्या बोलते हैं? प्री पेटेंट पीरियड। तो वो
वेरी करता है, तो किसी में 8 मंथ टू 12 मंथ तक लग जाते हैं, ठीक है। सो द पीरियड फ्रॉम द एंट्री ऑफ द इन्फेक्टिव लार्वा टिल द डेवलपमेंट ऑफ द अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन इज कॉल्ड द क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड। तो जब लार्वा एंटर होगा, इन्फेक्टिव लार्वा, उस पर्टिकुलर ह्यूमन में, और उस पीरियड तक, जब तक उस ह्यूमन में जो क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन है, सिम्टम्स दिखेंगी नहीं, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? उस पीरियड को हम बोलते हैं क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड। तो वो भी क्या है? वेरिएबल है। तो किसी किसी में 8 से 16 मंथ लगते हैं। सो इट में ऑफन भी मच लॉन्गर, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो पैथोजेनेसिस आप देख सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन विथ वोचेरिया बेनक्रॉफ्टी डिस्प्ले वाइड स्पेक्ट्रम फ्रॉम क्लिनिकली साइलेंट इन्फेक्शन with no apparent inflammation or parasite damage to mild to intense non-granulomatous chronic lymphatic inflammation to a variety of granulomatous obstructive reaction। तो किसी किसी में कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता है, मतलब मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं क्लिनिकली साइलेंट इन्फेक्शन, जहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन या पैरासाइट डैमेज नहीं होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो मिल्ड से इंटेंस नॉन ग्रेन्युलोमेटस क्रॉनिक लिम्फेटिक इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रेन्युलोमेटस रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ह्यूमन पे। सो अगर हम एसिम्टोमेटिक फेज की बात करेंगे, तो इंडिविजुअल विद एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन यूजुअली हैव हाई माइक्रो फिलेरिमियास, ए कंडीशन ऑफ हैविंग माइक्रोफिलेरी इन द ब्लड। तो अगर किसी एसिम्टोमेटिक फेज में क्या होता है, उस पर्टिकुलर ह्यूमन के ब्लड के अंदर जो माइक्रोफिलेरियल्स है, उनका जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है। सो इट अपियर्स दैट इन सच पीपल द TH1 टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज डाउन रेगुलेटेड एंड TH2 टाइप इज स्टिमुलेटेड। तो उन पर्टिकुलर ह्यूमन में क्या होता है, जो TH1 टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है, टी हेल्पर सेल्स के थ्रू जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, वो डाउन रेगुलेट हो जाता है, और जो 2H2 टाइप इम्यून रिस्पॉन्स है, वो स्टिमुलेट हो जाता है। सो द साइटोकाइन interleukin-4 which suppress the activation of TH1 cell is elevated and interferon gamma is depressed, ठीक है। तो जो ये साइटोकाइन है, दैट इज अ इंटरल्यूकिन 4, उसका जो लेवल है वो क्या हो जाता है? वो इंक्रीज हो जाता है, विच सप्रेस द एक्टिवेशन ऑफ TH1। एंड अनदर है, दैट इज अ इंटरफ्यूरॉन गामा, विच इज जिसका लेवल क्या हो जाता है? जिसका लेवल कम हो जाता है, कब? इस एसिम्टोमेटिक फेस में। So eventually, after a long period, this tolerance or hypo-responsiveness often breaks down and inflammatory reactions rises, ठीक है। तो ये कुछ समय तक रहेगा, तो कुछ टाइम के बाद ये जो पीरियड है, दैट इज़ द एसिम्प्टोमेटिक फेज, वो ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। सो दस द टू फेज ऑफ लिम्फेटिक फ्लेरेसिस, ठीक है। एक है हाइपो रिस्पॉन्सिवनेस, एंड दूसरा है क्रॉनिक लिम्फेटिक डिजीज और इनिशिएटेड बाय द पैरासाइट एंड इम्यून फैक्टर्स। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन एंडेमिक एरिया शो देयर आर सिम्टम्स नॉर माइक्रोफिलेरिया, दीज आर द एंडेमिक नॉर्मल्स। तो कुछ लोग हैं, ठीक है, इन एंडेमिक एरिया शो नीदर सिम्टम्स नॉर माइक्रोफिलेरिमिया, ना तो उसमें कोई सिम्टम्स दिखेंगे, ना तो जो माइक्रोफिलेरिया का लेवल है वो ज़्यादा दिखेगा। सो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंडेमिक नॉर्मल्स बोलते हैं। सो दैट में सच पीपल आर एक्चुअली इन्फेक्टेड विद एडल्ट वॉर्म्स कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय डिटेक्शन ऑफ वॉर्म एंटीजन इन their blood, although the mechanism of the microfilariae remains unexplained in such cases। तो अगर हम देखेंगे, तो अगर हम एंटीजन कोई टेस्ट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर ह्यूमन में हमको एडल्ट वॉर्म्स दिखेंगे, ठीक है। एडल्ट वॉर्म्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, बट उसमें जो माइक्रोफिलेरिया है या कोई सिम्टम्स वहाँ पे दिखेगा नहीं। सो अगर हम सेकंड देखेंगे, इन्फ्लेमेटरी फेज या एक्यूट फेज। सो इन्फ्लेमेटरी फेज, जिसको हम एक्यूट फेज भी बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी inflammatory responses are due to antigen from adult worms, particularly females, but not caused by microfilariae. It is now clear that the much inflammation is due to invasion by bacteria from the skin surface। तो जो inflammatory response है, वो जो एडल्ट वॉर्म्स है उनकी वजह से होता है, पर्टिकुलरली फीमेल की वजह से, माइक्रोफिलेरी की वजह से नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जो एडल्ट वॉर्म्स है वो एंटीजन
प्रोड्यूस करता है, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारा जो बॉडी है वो इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अ, और जो मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन है वो सिर्फ उनकी वजह से नहीं होता है, बल्कि जो स्किन के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो एंटर होता है हमारे बॉडी में, उसकी वजह से भी होता है। सो एडल्ट वॉर्म्स इन द lymph channels causes dilation of the channels and interfere with lymph flow resulting in various symptoms which may be described as follows। तो जब ये एडल्ट वॉर्म्स हमारे लिम्फेटिक सिस्टम्स में रहते हैं, तो जिससे क्या होता है, जो हमारे लिम्फ वेसल्स हैं वो फूल जाते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से जो लिम्फेटिक फ्लो है, ठीक है, जो लिम्फेटिक सिस्टम्स है उनमें उनके फ्लो में रुकावट आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे सिम्टम्स वहाँ पे हमको दिखने लगते हैं, जैसे कि उन्होंने सबसे पहला लिखा है, दैट इज़ द lymphangitis। So here acutely inflamed lymph vessels may be seen as red streaks underneath the skin। Lymphatics of testis and spermatic cord are frequently involved। तो यहाँ पे क्या होता है, जो lymph vessels है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेड स्ट्रीक्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपके स्किन के नीचे आपको रेड कलर के स्ट्रीक्स दिखेंगे या स्पॉट्स दिखेंगे। सो वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो एडल्ट वॉर्म्स है वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में उसके फ्लो के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। तो साथ साथ में जो लिम्फेटिक टेस्टिस में भी जो लिम्फेटिक सिस्टम है वहाँ पे वो इंटरफेयर करते हैं, और जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वहाँ पे भी वो इन्फ्लेमेशन डेवलप करता है। सो दिस फेज इज कॉल्ड लिम्फेंजाइटिस, ठीक है। देन उसके बाद है लिम्फेडेनाइटिस, ठीक है। सो इन दिस इज द रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड्स। जब लिम्फ नोड्स कंटिन्यूसली वहाँ पे लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेमेशन होगा, तो उसके साथ साथ क्या होंगे, फीवर्स होंगे, चिल्स, ठीक है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपको कोल्ड फील होगा, टेंडरनेस अलोंग सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, ठीक है, आपको जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम्स है वहाँ पे आपको हार्डनेस आपको लगेगा। सो इंगुअल नोड्स आर मोस्ट ऑफन इफेक्टेड बाय द एक्सिलरी नोड्स लेस कॉमनली। जो आपके इंगुलन नोड्स है, जो इंगुअल लिम्फेटिक नोड्स है, वहाँ पे वो ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द एक्सिलरी लिम्फेटिक नोड्स। देन उसके बाद है थर्ड इज लिम्फेडेमा। सो दिस follows successive attacks of lymphangitis and usually starts swelling around the ankle, spreading to the back of the foot and leg. It may also affect the arms, breast, scrotum, vulva, or any other part of the body. Initially, the edema is pitting in nature, but in course of times become hard and non-pitting। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब कंटिन्यूस अटैक्स होगा किसका, लिम्फेजाइटिस का, ठीक है, तो जो ये आपके एंकल के पास स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो आपके बैक ऑफ द फुट तक पहुंच जाएगा, देन आपके पूरे लेग्स में फैल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो लिम्फेडेमा है वो मेनली कॉमन कहाँ पे है, जैसे कि आर्म्स है, ब्रेस्ट है, स्क्रॉटम है, वुल्वा है, और दूसरे जो पार्ट्स है बॉडी के वहाँ पे वो फैल जाता है, ठीक है। सो इनिशियली जो एडिमा है, एडिमा मीन्स जो स्वेलिंग हम उसको बोलेंगे, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है नेचर में, बट धीरे धीरे वो हार्ड होते जाता है, ठीक है। देन उसके बाद है लिम्फोरेजिया। तो रैप्चर ऑफ द लिम्फ वेसल लीडिंग टू रिलीज ऑफ लिम्फ और काइल, ठीक है। तो यहाँ तक तो स्वेलिंग हो गई। अब उसके बाद जो फोर्थ कंडीशन है लिम्फोरेजिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लिम्फ वेसल्स है उसका वो रप्चर हो जाता है, और जो लिम्फ्स है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, जिसको हम काइल बोलते हैं, वो काइल बाहर रिलीज हो जाता है किसमें, इन्वायरमेंट में। Then the fifth, that is a filarial fever. So high fever or sudden onset, often with rigor lasting for 2 to 3 days, that occurs repeatedly at intervals of weeks or months। तो क्या हो जाता है, एकदम से वहाँ पे फीवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो 2 से 3 दिन तक रहता है, ठीक है, और बार बार और रिपीट होता है ये जो फीवर का जो पार्ट है, ठीक है। सो ये जो फीवर है इट इज़ ऑल्सो अकम्पेन्ड बाय लिम्फेजाइटिस एंड लिम्फेडेनाइटिस, ठीक है। तो एक तो फीवर तो हो रहा है, साथ साथ में जो हमारे फर्स्ट और सेकंड जो आपने डिस्कस किया था, दैट इज़ अ लिम्फेंजाइटिस और लिम्फेडेनाइटिस, तो वो भी उसके साथ साथ होता है, ठीक है। सो एडिशनल कॉमन सिम्टम जैसे कि एक्यूट स्टोफिलाइसिस इंक्लूड ऑर्चाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, usually with sudden enlargement and considerable pain, hydrocele, forcing of lymph into the tunica vaginalis of the testis or spermatic cord, and epididymitis, inflammation of the spermatic कॉर्ड। तो ये भी इसके साथ साथ
ये जो फिलेरियल फीवर है उसके साथ साथ होता है ड्यू टू दिस फिलेरिसिस, ठीक है। इन सच केसेस extensive proliferation of the living cells with much inflammatory cell infiltration occur. The most prominent cells include lymphocyte, plasma cell, and eosinophil. Abscesses around dead worms may develop with accompanying bacterial infection. तो इस केस में क्या होता है, इस केस में वहाँ पे एप्सिस फॉर्म होगा, तो जो डेथ जो फिलेरियल वॉर्म्स है उसके अराउंड एप्सिस फॉर्म होंगे, ठीक है। तो जब एप्सिस फॉर्म होगा तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा, जिसके वजह से ये जो सेल्स है उनका प्रोलिफरेशन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको स्वेलिंग नज़र आएगी जहाँ जहाँ पे जो बैक्टीरियल वॉर्म्स है वो प्रेजेंट होंगे। देन उसके बाद है सेकंड, डेट इज़ द ऑब्स्ट्रक्टिव फेज। तो इसमें क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्टिव फेज इज मार्क्ड बाय लिम्फ वेरीज, लिम्फ स्क्रॉटम, हाइड्रोसील, काइलुरिया एंड एलिफेंटाइसिस, ठीक है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव फेज में लिम्फ वेरीज, लिम्फ स्क्रॉटम, ठीक है, हाइड्रोसीले, काइलुरिया एंड एलिफेंटाइसिस, तो ये कुछ डिजीज़ हैं, ठीक है। तो वो आपको उस पर्टिकुलर उसमें देखने को मिलेगा। अगर हम लिम्फ वेरीज की बात करेंगे, तो जहाँ पे लिम्फेटिक नोड्स होंगे वो स्वेल कर जाते हैं, तो आपको वहाँ पे जहाँ जहाँ पे लिम्फेटिक नोड्स होंगे वहाँ पे आपको स्वेलिंग्स दिखने पड़ जाते हैं, ठीक है। अब लिम्फ स्क्रॉटम में क्या होता है, जो स्क्रॉटम है उसमें बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल्स डेवलप हो जाते हैं, लिम्फ नोड्स वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हाइड्रोसील में क्या होता है, जो स्क्रॉटम है वो इनलार्ज हो जाता है ड्यू टू द जो वाटर है वो टेस्टिकल्स में स्टोर हो जाता है। देन चाइलूरिया, तो उसमें जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो ब्रेक हो जाते हैं और जो लिम्फ्स है वो किडनी में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो किडनी में एंटर होगा और जो यूरिन होगा वो वाइटिश कलर का होगा। एंड एलिफेंटेसिस, दैट इज द स्वेलिंग ऑफ द पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, जिसमें हाथ भी स्वेल कर सकता है, ठीक है, इनलार्ज हो सकता है, पैर भी इनलार्ज हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा एलिफेंटेसिस के केसेस में। So lympharies are varicose lymphatic ducts caused when lymph return in obstructed and the lymph piles up, greatly dilating the affected duct. This causes कायूरिया और lymph in urine, a common symptoms of lymphatic filariasis, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया। In many cases, repeated attack of acute lymphatic inflammation leads to a condition known as elephantiasis, ठीक है। Ancient Greek and Roman writer compared and described the thickness and fissured skin of infected person to that of an elephant, though it is a nonsense word literally meaning a disease called by elephant, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी पार्ट्स है वो साइज में बढ़ जाते हैं ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। एंड जो स्किन है वो बहुत रफ दिखने लगती है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि किसी एलिफेंट का है, मतलब पैर या हाथ हो, इसीलिए इसको एलिफेंटेसिस कहा गया है, बट इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय द एलिफेंट। सो बट द वर्ड इज सो डीपली entrenched however that is not likely ever to be abandoned. This is a chronic lymphedema with much fibrous infiltration and thickening of the skin. In men, the organs most commonly affiliated are the scrotum, legs, and arms. In women, the legs and arms are usually affiliated with the vulva and breast being affected more rarely, ठीक है। तो मैन में पैर और हाथों के साथ साथ जो स्क्रॉटम है तो वो भी इन्फेक्टेड रहता है, बट फीमेल में सिर्फ हाथ और पैरों तक ये एलिफेंटेसिस रहता है, ठीक है। वुल्वा और जो ब्रेस्ट है उस मतलब उनके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। In this elephantiasis, the skin becomes thickened due to accumulation of fibrous connective tissue, granulomatous tissue, and fat. The skin surface becomes coarse with warty excrescence, crescents, and fissures develop with secondary bacterial infection. Microfilariae usually are not present in such thickened organs, ठीक है। तो जो हमारे स्किन है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, तो वहाँ पे फिब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है और साथ साथ में जो ग्रेनुलोमेटस टिश्यू है और फैट भी वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जो हमारा स्किन है वो कोर्स जो रफ दिखता है ड्यू टू द वाटी एक्सीरेसेंस एंड क्रैकल्स एंड फिशर्स, ठीक है। और इस जो एलिफेंटेसिस जहाँ पे हुआ है वहाँ पे माइक्रोफिलेरिस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द Vachyria bancrofti and its life cycle and pathogenesis. So elephantiasis is thus a result of complex immune response of
long duration after the worms die and are absorbed. The symptoms gradually disappear. Repeated super infection over many years are usually required for elephantiasis to occur. तो एकदम से elephantiasis नहीं होता है. जब बहुत सारा रिपीटेड सुपर इन्फेक्शंस वहाँ पे होंगे तब जाके वहाँ पे elephantiasis डेवलप होगा. ठीक है, सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं elephantiasis में. So this is the enlarged leg. ठीक है, तो हम यहाँ पे भी आपको दिखा सकते हैं. सो दिस इज केस ऑफ एलिफेंटियासिस. आप यहाँ पे देख सकते हो. सो इन दिस द लेग इज enlarged and coarse and इट इज़ ओनली कॉज टू द रिपीट सुपर इन्फेक्शंस. ठीक है, एकदम से जैसे बैक्टीरिया जो वॉर्म है आपके बॉडी में एंटर होगा तो उसी टाइम पे ये एलिफेंटिसिस नहीं होगा. जब आपके जो बॉडी में जब ये इन्फेक्शन रिपीट होंगे और जो सुपर इन्फेक्शन रिपीट होगा तब जाके ये जो एलिफेंटिसिस है वो डेवलप होगा. So this is all about the life cycle and pathogenesis of Bacteria bancrofti. Thank you.